Hello, my dear kids. Welcome back to the Turning Point publication. I am Vandana and we are doing EVS of class 5. So, children, here in front of you is your book, My Green World. And today we are going to do chapter number 8. And the name of the chapter is Keeping Healthy and Fit. Have our discussion in class on how we can stay fit and healthy. So what you have to do, you have to discuss in class how you can be fit and fine. What are the things we should do? क्या क्या चीजें करनी चाहिए? Share your ideas with your classmate. We have already learned how to keep healthy, eat and the right kind and amount of food, drink enough water and breathe clean air. So इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, कितना वाटर पीना चाहिए, कैसे एयर को ब्रीथ इन करना चाहिए. We also learned that we must keep a house and our surrounding clean. हमने ये भी पढ़ा है कि हमें अपने घर को या फिर हमारे अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना है. So now children, we should learn how can we prevent ourselves from diseases and keep ourselves healthy. So here, what are diseases? First, let's learn this topic. Have you had a fever? क्या आपको कभी फीवर हुआ? Cold, an upset stomach, skin infection. क्या इन सब में से कोई भी चीज हुई है? How do you get these? ये चीजें आपके पास कैसे आती हैं? They are caused by germs. ये germs की वजह से होती हैं. Germs are very tiny living things. Germs है बहुत ज्यादा छोटे living things हैं. That are invisible to the eye. ये हमारी आंखों को नहीं दिखाई देते. When they attack people, they make them unwell. और जब ये अटैक करते हैं लोगों को ये बीमार कर देते हैं. Infectious diseases. Have you noticed that when someone in your family or friend has cold or conjunctivitis? क्या आपने देखा है कभी कि आपकी फैमिली में कोई बीमार हुआ हो या कोई फ्रेंड बीमार हुआ हो जिसे कंजक्टिवाइटिस हुआ हो, और इन्फेक्शन ऑफ द आई, आईज उसकी रेड हो जाती हो, उसमें से आप जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है. सो ऐसे बीमारी को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं. अदर अराउंड देम ऑल्सो गेट द डिजीज. और जो भी उनके पास रहता है, जो भी इंसान, उसे भी ये बीमारी हो जाती है. These are diseases that spread from one person to another. ये ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे तक पहुंचती है. They are called infectious और communicable diseases. इन्हें हम infectious या फिर communicable diseases भी कहते हैं. A person gets an infectious disease when germs enter the body. कोई भी जो पर्सन है उसे infectious disease कब मिलती है? जब भी germs जो एंटर करते हैं उसकी बॉडी में. These germs can then spread to other people. ये germs जो है दूसरे people तक पहुंचते हैं. Who come in contact with the sick person, जो इन sick person के contact में आते हैं. How infectious diseases spread? कैसे diseases spread करती है? This we are going to read. Though infected food and water, through infected food and water. तो infected food और water से ये पहुंचती है हम तक. Food and water can get spoiled by dirt and dust or by insect like cockroach, flies and other animals like rats. तो ये जो food में infection है इन सारे factors की वजह से आ सकता है. This happens when food or water is not stored properly. ये कब होता है? जब food और water जो है ठीक से store नहीं किया जाता है. Touching food and water with unclean hands can make them dirty. अगर हमने गंदे हाथों से अपना जो भी फूड है उसे अगर टच कर दिया तो फूड डर्टी हो जाएगा. An unclean environment is a breeding ground for germs. अगर environment जो है unclean है तो germs भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं. Eating infected food and drinking infected water makes the germs enter the human body. So अगर हमने infected food को खा लिया है और infected पानी पी लिया है तो जो भी germs है वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं. And causes disease और बीमारियाँ पैदा कर देते हैं. Food poisoning, diarrhea, typhoid and cholera are some of the diseases that spread this way. So कुछ diseases हैं जैसे कि food poisoning हो गया या diarrhea हो गया या फिर typhoid हो गया या फिर cholera. ये सारी बीमारियां जो है इसी तरीके से फैलती हैं. Through direct contact, किसी चीज के direct contact में आने से भी. Germs can directly pass from one person to another person. Germs जो है एक person से दूसरे person तक पहुंच सकते हैं. Therefore, diseases like Ebola, ringworm, chickenpox, measles,
फ्लू एंड कॉमन कोल्ड कैन स्प्रेड बाय टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन को हमने टच कर दिया तो डिजीज हम तक भी पहुंच सकती है। और बाय टचिंग टॉवल्स, हैंकरचीफ्स और रिंगवर्म, चिकन पॉक्स टॉयज यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। सो अगर इन आर्टिकल्स को हमने टच किया वी विल गेट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज थ्रू एयर। एयर से भी इन्फेक्शन फैलता है। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन coughs, sneezes और spits, germs are released into the air। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है खांसता है, छींकता है या फिर थूकता है तो जो भी जर्म्स होते हैं उसकी बॉडी में वो एयर में आ जाते हैं। When a healthy person breathes this air, जब कोई हेल्दी इंसान इस एयर को ब्रीद इन करता है, the germs enter their body, ये जो जर्म्स है उनकी बॉडी में चले जाते हैं। and common cold, flu, measles and viral fever spread this way। और इस तरीके से ये सारी बीमारियां फैल जाती हैं। नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की वजह से ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लीज स्प्रेड डिजीजेस सच एज डेंगू, मलेरिया एंड प्लेग। सो कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि मॉस्किटो हो गए या फ्लाइज हो गई या फिर कुछ एनिमल्स हैं जिनकी वजह से डेंगू, मलेरिया या फिर प्लेग भी फैलता है। द फीमेल एंटीलोप मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया। जो फीमेल एंटीलोप मॉस्किटो है वो मलेरिया को स्प्रेड करती है। When a mosquito which has bitten somebody suffering from malaria bites another person, that person too gets infected। जब कोई ऐसा इंसान है जो बीमार है बीमारियों से और ये मॉस्किटो जाके उस इंसान को काटती है और दूसरे हेल्दी इंसान तक पहुंचती है और उसे काटती है तो ये डिजीज स्प्रेड हो जाती है। डेंगू इज ऑल्सो स्प्रेड बाय मॉस्किटो। डेंगू भी मॉस्किटो से स्प्रेड आउट होता है। द बाइट ऑफ रैट्स एंड फ्लीज कैन कॉज प्लेग। अगर ये जो इंसेक्ट्स हैं जैसे रैट्स हो गए या फ्लीज हैं ये भी प्लेग को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। थ्रू डैमेज स्किन, योर स्किन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव वॉल फॉर योर बॉडी। हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम करती है। जर्म्स कैन नॉट एंटर योर स्किन बट इफ योर स्किन इज कट और डैमेज। लेकिन अगर आपका स्किन कट है या डैमेज है जर्म्स कैन इजिली एंटर एंड कॉज डिजीजेस। जर्म्स आसानी से घुस सकते हैं और डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं। जर्म्स ऑफ डिजीजेस सच एज टेटनस गेट्स इनटू ब्लड बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। सो कुछ जर्म्स है टेटनस के वो हमारी बॉडी में इन कट से चले जाते हैं। सो इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपका कुछ ऐसा कट्स हो जाते हैं वी गेट द इंजेक्शन ऑफ टेटनस। नाउ हियर एन एक्टिविटी इज गिवन। इंटरव्यू अ हेल्थ वर्कर और अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट मोर अबाउट मलेरिया। किसी हेल्थ वर्कर या फिर डॉक्टर को इंटरव्यू करना है और मलेरिया के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हमें ढूंढनी है। डेंगू स्प्रेड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। डेंगू जो ज्यादातर रेनी सीजन में आता है। लुक फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू डेंगू। डेंगू से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स आपको ढूंढने हैं एंड इट्स प्रिवेंशन, कैसे उससे बचा जाए। कट दीज आउट एंड पेस्ट इन योर स्क्रैप बुक। आपको इन्हें कट करना और अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस, कैसे बचा जाए। The most important thing is to keep our homes, our surrounding and ourselves clean। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को, अपने सराउंडिंग को, अपने घर को क्लीन रखें। We must keep our body clean by having a bath with soap every day। हर रोज सोप और वाटर से बात करके हम अपने बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। We must wash our hands with soap and water before eating। खाना खाने से पहले हम अपने हैंड्स को सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए। Dirty skin and dirty nails breed germs। जो डर्टी स्किन है या जो डर्टी नेल्स है उसमें भी जर्म्स पैदा होते हैं। टू इंश्योर क्लीन सराउंडिंग वी मस्ट डिस्पोज आउट आवर रबिश फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो अगर हम चाहते हैं कि जो क्लीनिंग है हमारा जो सराउंडिंग है क्लीन रहे तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जो भी कूड़ा है उसे टाइम टू टाइम हटाना होगा, उसकी प्लेस चेंज करनी होगी, उसे फेंकना होगा। एंड नॉट अलाउ इट टू कलेक्ट, उसे कलेक्ट ना करें। रबिश इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स। रबिश क्या है, ऐसी जगह है जहाँ पे जर्म्स आते हैं और बढ़ते हैं। वी मस्ट यूज कवर्ड डस्टबिन फॉर रबिश। रबिश के लिए हमें कवर्ड डस्टबिन रखना चाहिए सो दैट वी कीप अवे फ्लाइज, कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स, ताकि हम जो भी कॉकरोचेज हैं, इंसेक्ट्स हैं या फिर जो फ्लाइज हैं उनसे दूर रख सकें।
वी मस्ट क्लीन द डस्टबिन रेगुलरली, डस्टबिन को हमें डेली क्लीन करना चाहिए, एंड ड्राई देम इन सन, और धूप में सुखाना चाहिए. You have already learned about disposal and recycling of waste in previous class. आपने previous class में पढ़ रखा है about disposal and recycling of waste. How should we area and allow enough sunlight to enter? House जो है हमारा वो खुला होना चाहिए, उसमें एयर पास ऑन होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर सनलाइट भी आनी चाहिए. सनलाइट किल्स जर्म्स, ये जो सनलाइट है वो जर्म्स को मार देता है. विंडोज एंड डोर्स शुड हैव वायर नेटिंग, जो भी विंडोज है या जो डोर है उनमें वायर की नेटिंग होनी चाहिए. टू स्टॉप इंसेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, ताकि इंसेक्ट्स को ये घर के अंदर घुसने से रोक सके. किचन, टॉयलेट्स, बाथरूम्स एंड ड्रेन शुड बी क्लीन प्रॉपरली, जो भी किचन है हमारे, टॉयलेट है, बाथरूम है या फिर ड्रेन्स हैं, उसे अच्छे से क्लीन करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट से. गेटिंग पेस्ट कंट्रोल डन वंस अ 6 month कीप्स अवे हाउस पेस्ट दैट कॉजेज डिजीज, तो हर 6 महीने में पेस्ट कंट्रोल कराना चाहिए जिससे ये सारे पेस्ट हमारे घर से जा सके. मॉस्किटोज ले देयर एग इन स्टिल वाटर, मॉस्किटोज क्या करते हैं, अपने जो भी एग्स हैं उसे रुके हुए पानी में ले करते हैं. सो वी मस्ट कवर आवर वाटर टैंक एंड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने वाटर टैंक को कवर करके रखना चाहिए और वाटर को कहीं भी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए. कूलर्स, वाटर टैंक, ओल्ड पॉट्स एंड पैन्स आर अ परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज. सो ये जितनी भी चीजें यहाँ पे चिल्ड्रन लिखी हुई हैं, इन सब जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है और यहाँ पे मॉस्किटोज इजिली ग्रो कर सकते हैं. वी मस्ट यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रेपलेंट्स एट नाइट, रात में हमें मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए, रेपलेंट्स लगाने चाहिए टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो ताकि हमें ना काट सके. We must only eat food that is prepared in clean kitchen, ऐसे फूड को ही खाएं जो क्लीन किचन में बने, and store hygienically, और अच्छे से स्टोर किया जाए. Never eat food that is not stored and handled properly, ऐसे फूड को ना खाएं जो प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया या ठीक से नहीं रखा गया है. We must drink water that is boiled, filtered or chlorinated, ऐसे पानी को पिए जो बॉयल हो या फिर फिल्टर हो या फिर क्लोरिनेटेड हो. Drinking infected water is the most common cause of the spread of infectious diseases. So ये जो infected water है, अगर हम इसे पी लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं. Ensure that the drinking water is stored and handled properly. इस बात का ध्यान रखें कि जो भी drinking water है उसे अच्छे से स्टोर किया जा रहा है. Infected persons and their belongings should be kept away from others. जो भी infected person है उसके जो भी belongings है उसे दूर रखना चाहिए दूसरे लोगों से. So that germs do not spread to others, ताकि ये germs दूसरों तक ना फैले. Once they have recovered, their clothes should be boiled to kill germs. जैसे ये लोग ठीक हो जाए इनके क्लोथ्स को बॉईल किया जाए, बॉइलिंग वाटर में डाला जाए ताकि germs मर सकें. Other personal belongings should be exposed to direct sunlight since sunlight kills germs. जो बाकी चीजें उसे सनलाइट में रखनी चाहिए क्योंकि सनलाइट क्या करता है, germs को मार देता है. Next process that we are going to learn is vaccination. Vaccination is the use of vaccine to prevent diseases. Diseases को prevent करने के लिए vaccination is very important. Through vaccination, the body's defense of or immune system is exposed to vaccine, which is a weak and harmless form of the disease causing germs. So vaccine से क्या है, हमारी जो immunity system है वो improve होगी और जो diseases हैं they cannot affect us. The body responds by trying to fight the germs. और हमारी बॉडी जो है उन germs से लड़ती है अगर हमने proper vaccination ली है. The vaccine can be given as an injection or given orally. वैक्सीन को इंजेक्शन के रूप में भी दे सकते हैं और orally भी दे सकते हैं. For example, the polio vaccine is given orally. ये जो पोलियो वैक्सीन है इसे orally दिया जाता है. Children receive vaccination from birth to about 4 to 5 years of age according to a schedule. So ये जो children है इन्हें 4 से 5 साल तक के जब भी होते हैं इनको एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम पे वैक्सीनेशन दी जाती है. Diseases such as measles, typhoid, tetanus, polio and mumps can be controlled by vaccine. So ये जो diseases हैं जैसे measles हो गया, typhoid, tetanus, polio या फिर mumps, इन्हें हम वैक्सीन से कंट्रोल कर सकते हैं. Vaccination helps in immunization.
वैक्सीनेशन से हमारा जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा. दैट इज इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम हार्मफुल इन्फेक्शंस एंड बिफोर दे कम इनटू कांटेक्ट विद देम. सो ये इन्फेक्शन या जो है बच्चों को हार्म पहुंचाए उससे पहले ये जो वैक्सीनेशन है वो उस डिजीज से लड़ लेती है, उन जर्म से लड़ लेती है और उन्हें मार देती है. नाउ हाउ कैन वी कीप आवरसेल्फ फिट? कीपिंग फिट, beside eating a balanced diet and remaining clean, you need to exercise every day. एक बैलेंस डाइट रखने के बाद, अपने आप को क्लीन रखने के बाद यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे. अपने आप को हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हम फिट रह सकें. एक्सरसाइज मेक योर मसल्स, बोन्स, हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्ग. एक्सरसाइज इन सब बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है. प्ले अ लॉट ऑफ आउटडोर गेम्स लाइक बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल एंड क्रिकेट. हमें ये सारे आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए. जॉग, स्विम एंड साइकिल वेयर एवर यू कैन. सो हमें जॉगिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए और साइकिलिंग करनी चाहिए जहां भी हम कर सकते हैं. When you help your parents with the housework or carry the shopping home, you are exercising. जब भी आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हो हाउस वर्क के लिए या उनको कैरी शॉपिंग बैग को शॉपिंग को अपने साथ, शॉपिंग बैग्स को अपने साथ आप लेके जाते हो, what you are doing? You are exercising. आप एक्सरसाइज कर रहे हो. Here you can see there are few pictures, children. Now let's move on to the book exercise. Here we have to find the name of the diseases. It's caused by eating infected food. It's caused by the bite of female antelope mosquitoes. So yes, it's malaria. So similarly, you have to find the name of the diseases that are caused. So it's spread by the rats. It's plague. Now let's move on to choose the correct option. Some diseases are caused by germs, water or food. Germs. Jaundice is caused by eating infected food, mosquito bite or rats. Eating infected food. So similarly do the rest questions, children. Write true or false. A person gets an infectious disease when germs enter the body. Yes, true. Germs cannot directly pass from one person to another. No, this is false. Now let's move on to question and answers. How are diseases caused? Diseases are caused by the germs that are spread in the atmosphere. It can also spread through the contact of an infected person. There are many ways through which diseases can spread and it can be caused. What should you do to keep healthy and fit? So to keep ourselves healthy and fit, we should wash our hands frequently. Before and after every meal, we should bath with soap and water. And we should keep our surrounding clean. Ourselves, our surrounding and our homes clean, through which we can keep ourselves healthy and fit. There are many other ways also, you can mention them also here. Now children, the rest questions you have to do on your own. Let's move on to the fun time. Have a debate in the class on the topic prevention is better than cure. Prevention काफी ज़्यादा अच्छा है किसी बीमारी को क्योर करने से. Work in group and design a poster with the caption keep healthy and fit. Keep healthy and fit पे एक आपको poster बनाना है. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you understood it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated and keep smiling.